Prime Minister Narendra Modi on his way to the BJP headquarters where a victory lap will be held. Make no mistake, when the dust settles, the BJP and the NDA have won this election. The opposition doing much better than many would have expected, but still the NDA by itself less than the BJP. So therefore, that's the big picture at the end of the day. Celebrations planned, not the kind of exuberant celebrations that would have followed had BJP been close to 300. That's far from the case. Even the NDA hasn't reached 300. It's just been the kind of day where the victors feel like the losers feel like they won. In the end, the biggest victor of all is Indian democracy. Thank you so much for tuning in on what's been a long, exciting day of election reportage. Let me take you through the headlines we are tracking tonight. Prime Minister Modi thanks the people of India for a third consecutive term, calls his re-election a historic feat. PM says he will continue to fulfill the aspirations of voters. UP ke ladke deliver big jolt to the Modi-Yogi double engine. Samajwadi Party makes a massive comeback. Congress leads in at least 98 seats. Mamata Banerjee reclaims the Bengal bastion and how. Big war to woo allies. PM Modi dials Chandrababu Naidu after his win in Andhra Pradesh. Sources say Sharad Pawar dials Nitish Kumar and CBN and Naveen Patnaik as well. Chandrababu Naidu's TDP makes a stunning comeback in Andhra Pradesh, emerges as kingmaker at the national level. Power star Pawan Kalyan powers the NDA in the state. End of the road for Naveen Babu. BJP wins historic mandate in the state of Orissa, ends Patnaik's 2 decades rule in the state. Bloodbath on the Lal Street. Sensex bleeds over 6,000 points. Nifty plunges to 1,400. Over 30 lakh crore rupees of investor wealth wiped out. Any moment from now, Prime Minister Narendra Modi will emerge at the BJP office. This will be his first public meeting, first public appearance after the results came out in the 2024 elections. Those are live scenes from the BJP headquarters where celebrations have been set up. The BJP putting up a brave face. It's a victory, but not the kind of bruising victory the BJP would have anticipated. My colleague Paulomi Saha joins us. You know, there's some people who are trying to sing and dance, but you can see quite generally that the body language is down. When the assembly results came, they were far more happy. There is victory, but there is some defeat and a very strong message in the victory as well, Paulomi. NCP won. Absolutely. It has been a sobering victory for the Bharatiya Janata Party. The BJP, of course, will be celebrating this moment because the Prime Minister is all set to equal the record of former Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru by winning for three consecutive terms. He's all set to form government. Tomorrow, the Union Cabinet will be meeting at the Prime Minister's residence at 11:30 a.m. in the morning, purportedly mostly to, of course, then the Prime Minister will, of course, tender in the resignation of the President Union Council of Ministers to the President, following which there will be the NDA meeting and the Prime Minister will stake claim to form government again. But yes, we are at the BJP party headquarters right now. Ashok ji will show you the pictures of the party headquarters. All the top leaders of the Bharatiya Janata Party, Rajnath Singh, S. Jaishankar, Nirmala Sitharaman, Jyotiraditya Scindia, who's back from Guna as a member of the Lok Sabha, Ashwini Vaishnav. They're all here present at the moment. JP Nadda has reached as well. He will be receiving the Prime Minister. As the Prime Minister arrives over here, the Prime Minister will be walking down the ramp with the BJP President from the entrance gate of the BJP headquarters extension building where we are at the moment, and then go all the way down to the dais, and then of course he will deliver his speech where of course he's already said on social media that he of course acknowledges
is the power of the people in the way that they've delivered a third consecutive term for the BJP-led NDA, and of course the stupendous victory of the NDA in Andhra Pradesh and BJP's victory in Odisha, BJP's foray into Odisha. He will of course reflect upon the results as well, and possibly there will be a message for all the Karyakartas over here as well as to how they could hit the ground. Stay with us, Poulomi. Shankar Iyer, what are you expecting the Prime Minister to say? This is a big moment. Make no mistake, in his history as a politician, he's never had a situation where he's been short of majority. This is uncharted territory for the Prime Minister also. There's a cabinet meeting at 11:30 a.m. tomorrow. Rashtrapati Bhavan's been shut down for the public from the 5th to the 9th of June. The President's house has been closed for the swearing-in preparations. Shankar, what kind of positioning are you expecting, messaging from the Prime Minister? Well, primarily he will prime the enthusiasm of the cadre. He will make them believe that this was a victory. Whatever has to be done in terms of cleaning up, the action, accountability, owners, whatever the phrase that you want to use, that will follow in the night. But just now he will be with the cadre. He will thank them for doing their bit, because the cadre expects to hear a few words from him. They expect him to say that they will be back, that he will be back, that the BJP will be in power, that it is their government, and all those comforting us. So this is TLC time for Mr. Modi with his cadre. Rajat Sethi, this is uncharted territory. Amit Shah is not used to it. The Prime Minister is not used to it. This BJP is not used to it. Now they have to deal with the reality that they're not in a majority government any longer. I think, Rahul, what they're used to is agility. Under circumstances when things don't go your way, you don't throw in the towel. You will do your level best to sort of recuperate from there and do the necessary changes. And I believe, this election, first of all, as I agree with Shankarji when he says that they would not want to position it as a defeat. So they will go all out in terms of setting the narrative correct on this, that it was a win and it was a truly historic victory, and they would want to claim credit for it. So I don't see any negativity coming out in the speech from the PM, or even an acceptance that something might have gone wrong here or there. So that is going to be as clean. There'll be no acceptance at all? I don't think so. Okay, Rashid. I'm very eager to hear what Prime Minister says. I think his pronouncement would have a bearing, because Prime Minister has seen how Mr. Bajpayee had to deal and negotiate with a kind of, unstable coalition. So that they will learn, Rashidji. The problem is that in today's meeting, because once the narrative sets, that same narrative will haunt him for the next 5 years. So he would do his level best to see that, yes, I got 235 seats. My only disagreement with you is that, you see, Mr. Modi has an idea, fair idea. He was General Secretary when Mr. BJP General Secretary. When Bajpayee ji was Prime Minister. Right. When one day, the DMK in Chennai announced that there will be a cabinet reshuffle at 10 a.m. at Rashtrapati Bhavan in Chennai office. And Mr. Bajpayee or Rashtrapati Bhavan did not know. And next day, actually, swearing took place. See, of course, absolutely right. He has 5 decades of political experience. So maneuvering and doing all of management post the government swearing in is not going to be too hard for him. He'll settle in, but he would not want to give a free pass to the opposition कि हम हार गए या moral defeat हुई है BJP की. I don't see that will happen. They have come there to hear, to be consoled, to be enthused. This is where I disagree. There's no consoling part. There will be consoling. No, there will be consoling. He will make a mention that they didn't reach the distance, but this is still a victory. And what happens to Mr. Guru Nadda? Prakash Paswan, national spokesperson of the Bharatiya Janata Party, now joins us. Mr. Paswan, what's the messaging internally? How are you interpreting this verdict? The BJP well short of a majority, far from where they'd have wanted to be at the end of this long day today. No, Rahul, I think it's very important for us to understand that Bharatiya Janata Party, our journey from 1952, from Jansangh, we have seen a lot of turbulations, a lot of pressure. But this is something which is very remarkable. For the third consecutive time, we have come back to power in New Delhi. And I was just looking at the vote percentage. It's about 32%. I think we are way above the Congress vote percentage. We are way above the number of seats. We are 140 more seats than the Congress party. So I think the Congress party celebration or the India Alliance celebration is something of a premature sort. But they are also trying to send out a message. But for us, for the Bharatiya Janata Party, we have emerged as the single largest party for the third consecutive time. I was just looking through some data.
Margaret Thatcher or Tony Blair in the past. They have been the head of states who have come back for the third consecutive time. But Prime Minister Modi, because of his popularity, because of his undisturbed vote share, I think this is something which is very remarkable. For us, we were definitely expecting more. I will not make any doubts about it. We were expecting more, better performance in parts of Eastern Uttar Pradesh and in Bihar as well. We were 39 out of 40 in Bihar. We are now, I'm told, 30 out of 40 in Bihar. So there are certain places of improvement for which the party leadership will definitely hurdle, do some introspection. And Bharatiya Janata Party is very special in the terms of having some self-corrective measures. Some mechanism is there where the party takes stock of things and then sends out their karyakartas for making the changes. So for us, the Bharatiya Janata Party, it is a very positive day. And we are looking forward to the next 5 years, like the Prime Minister just tweeted and like you read, that for fulfilling the aspirations of Viksit Bharat. The Viksit Bharat Sankalp that we have taken for the next 25 years, it's going to be fulfilled in the next 5 years, Rahul. Okay, JB Mathur, a member of Parliament, Rajya Sabha, Congress, joining us. JB, we're seeing now Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh lining up to welcome the Prime Minister. You know, the BJP just put out this creative which says that the India alliance together by itself is less than the BJP. So BJP alone at this moment is 241. The India alliance all put together is 232. So no matter how excited the opposition may be, ultimately BJP akeli sab pe bhari. That's besides the point. The point here is they wanted 400 par and they were so sure about it. And they wanted to amend the constitution. They want to bring in another constitution. But people of India decided, no, that's not going to happen. They don't want BJP to amend the constitution. Then this is a clear message by the people that, no, this arrogance, this kind of attitude, this hatred being spread, the divisive politics, nothing will be accepted by India and by the people of India. That's very So clear. for the first time, we're going to see Prime Minister Narendra Modi after his third victory in the Lok Sabha elections of 2024. The BJP headquarters are buzz, the cameras are out, the flash guns are flashing. Prime Minister Narendra Modi, by itself the BJP more than the combined India alliance taken together. There he is, for the first time, ladies and gentlemen, Prime Minister Narendra Modi, after winning the Lok Sabha elections. Didn't quite achieve a majority that the BJP would have wanted, but far and away the single largest party, more than double that of the Congress. Bharatiya Janata Party celebrating the victory of Prime Minister Narendra Modi. The confetti is out of the can. Prime Minister Modi has reached chants of Modi, Modi, ring the air at the BJP headquarters. Modi, 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 Modi. That's Prime Minister Narendra Modi. He's signaling the we sign. He's signaling to his people, we won. You know, 3 terms down, 2 terms down, Margaret Thatcher, Tony Blair, all of them had a tough election. Make no mistake, this is quite normal. Anything else would have been supranormal. This is quite normal. This is what I'm saying. I mean, look at some of the tallest and the biggest reformers India has seen, be it PV Narasimha Rao or Atal Bihari Vajpayee. Both saw drubbing even in the just immediate after the first term. And yet, Atal Bihari Vajpayee, after that short, brief tenure, he came back and continued the reform journey. So I believe he would be unperturbed, Prime Minister Modi. He would carry on his mantra for reforming India, for a Viksit Bharat, and he would do whatever is required of him or expected of him. But Rajat, Remember, BJP seems victim of its own propaganda. Here, you know, people were talking about that, you know, famed machinery, election machinery, rewards from so many lakh, you know, persons giving every machinery, Panna Prabhu, you know, everything was a legendary proportion. Every machinery, crores and new capital investments to be made into the new machineries. You bring in more robotics and more. So yeah, the things, you know, that is why any organization is a living, breathing organization. And Paulumi Saha is at the BJP headquarters. Paulumi, take our viewers through the celebrations, the scenes at the BJP headquarters. The confetti are flying. The BJP flags are up in the air. He's trying to get everyone to chant Modi, Modi. It's not quite as spontaneous because everybody's also a little shocked
that the fact that they haven't got the majority that they wanted, so they're putting up a celebratory spirit, but obviously it's chastened by the reality that the party hasn't been able to hit a majority by itself and that the opposition is back in a dramatic fashion. BJP Home Minister Amit Shah is on the screen, Defence Minister Rajnath Singh out there welcoming Prime Minister Narendra Modi as he reaches the BJP headquarters. जब तीसरी बार जनता चुन कर देती है और इसलिए जिस सहर्ष से हम सब स्वागत कर रहे हैं, पूरी देश की दुनिया की लोग देख रहे हैं, देश की जनता देख रहे हैं, दुनिया के लोग देख रहे हैं, दुनिया के लोग देख रहे हैं। तीसरी बार जो Prime Minister Narendra Modi walking into the BJP headquarters, flanked by BJP President JP Nadda. He's waving his hands, signaling to the crowds. They have their cameras out. There is a celebratory air. An effort is being made to push a celebratory air. Naturally, they're a bit disappointed with this verdict. There can be no going away from that. They're chanting Modi, Modi. I mean, the MC is chanting Modi, Modi more than the crowds just at this moment. But they're trying to get the crowd pumped up. They're trying to get Shankar Iyer, the crowd pumped up. Well, it's a bit like the vote percentages and the seat story. Is they're sort of, getting the people to go after them, but the chorus isn't rising to the crescendo that is expected, just as the score. I think it's a mic problem. No, but also, Rajat, chorus... frankly, the fact is that this is not something which was in the realm of what the BJP thought was possible. They thought, they see it as a setback. The fact that they have ended up around 240 is... not something that was on their calculation, wasn't on their radar. I don't think anybody expected within the BJP that they might not touch the 272 mark, forget about the loftier goals that they had set. So it's a new realization and nobody knows as to, ideally, we were just discussing this, had it been any other time of... the closest shot we've seen so far of Prime Minister Narendra Modi. He's putting up his hand in a sign of victory. Amit Shah and Rajnath Singh just behind him. They're trying to send a very, but you can see the shoulders slightly drooping. They're trying to send the message that they won, which they have. The most important data point at this moment is the BJP by itself more than the combined India alliance. But the body language of Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and the others in their press conference were more upbeat. वो हार के भी जीत गए, ये जीत के भी हार गए. यही दुविधा है जो कि public को देखनी होगी. You wanted a grand finale to the Indian Premier League, in the Indian political league. The IPL was a washout. This IPL, the political league IPL, has really made things very exciting. Yes, Rashid sir. Now, while Mr. Modi, BJP, NDA has the numbers, they have a legitimate right, but a lot of introspection is required. And having covered Congress party, I have seen when on the good old days of Congress, whenever there was accountability issue, it will always happen at what level. So here, if you hold Mr. JP Nadda accountable, then, questions are going to be asked. If you don't do any accountability exercise, let's not forget, Rahul, that the BJP has had poll debacle in Uttar Pradesh, Maharashtra and Bengal. 3 big states. Biggest states. Haryana doesn't. And Haryana, yes, Haryana. But that is more on the anticipated lines. And Rajasthan, Haryana Maharashtra wasn't. They thought they fixed it. No, Maharashtra. That would be this bad. That would be this bad. Rahul is right. Maharashra was not a. They thought संभल गया. They thought कि okay, we managed. अंदर में बात बताऊं तो नहीं संभला था महाराष्ट्र में आग लगी हुई थी throughout, right from the day they lost the mandate. आपको अजीत पवार से क्या फायदा हुआ? नहीं, अब देखिए, एक्सपेक्टेशन ये थी कि शरद पवार he'll chip off certain votes in certain seats. It didn't happen. I don't think vote transfers happened smoothly. To be fair to them, without them they would have done much worse. Much worse. This is what I'm saying. BJP was a very. They would have been wrapped. Yes, the Prime Minister. This is Vinod Tavade, one of the important general secretaries of the BJP. JP Nadda there. You can see the Home Minister there. You can see the Defence Minister. But you can also see that there is a level of chastening. This is a celebratory moment. They will make the most of it. But it's not as dil se khushi as they would have been had they been close to 300. See the body language of Rajnath Singh, Amit Shah and JP Nadda. There is this element of sort of recognition that they haven't done what was needed to be done, and in somehow they feel that they have failed their leader. Perfect song that was comfortably numb. So they are in their chairs in seats of power, but numb. When your ratings go down a bit, you're still number one, and the competition is, some distance away, you're still number one, but you don't have the kind of
energy, sweeping ratings that you would have had exuberance. otherwise. Yeah. So it's a bit like that. TV producers would call this the Thursday wali feeling, but this is now JP Nadda, the BJP president. He'll come out. Let's listen to what he has to say. They'll obviously be gung-ho, charged up, trying to pep up their workers. Let's listen to the BJP president, JP Nadda. आज के इस विजय उत्सव पर मंच पर उपस्थित हम सबके बहुत ही प्रिय और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी और यहां उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में इस विजय उत्सव में आए हुए हमारे सभी समर्थक कार्यकर्ता बंधु, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी और देश भर से टेलीविजन के माध्यम से जुड़े हुए हमारे करोड़ों कार्यकर्ता और भारत की यशस्वी जनता, आज ये बहुत ही खुशी का विषय है कि आज इस धन्यवाद मोदी जी को देने के लिए और विजय उत्सव मनाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में उत्साह के साथ आए हुए हैं कार्यकर्ता। आप सब लोगों की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से सबसे पहले इस कार्यक्रम में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमें सबको स्मरण है कि चाहे चुनाव की बेला हो, चाहे देश को नेतृत्व करने की बात हो और देश को समस्याओं से निकालने का, अब जिसे हम कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलने में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा देश को, पार्टी को, देश की जनता को फ्रंट से लीड किया है। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आज सभी एनडीए के साथी दल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिन्होंने अथक प्रयास के साथ पीछे कई महीनों से अथक प्रयास किया और एनडीए को जो जीत दिलाई है, उसके लिए मैं साथी दलों का और हमारे कार्यकर्ताओं का और साथी दलों के कार्यकर्ताओं का भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं और उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के करोड़ों हमारे देशवासियों को, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए एक ऐतिहासिक पल, एक ऐतिहासिक घड़ी के चश्मदीद गवाह बनने का हम सबको सौभाग्य दिया, ऐसे हमारे मतदाता बंधु, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को अपना आशीर्वाद दिया और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम किया, ऐसे करोड़ों करोड़ों देशवासियों को मैं पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम जानते हैं देश ने एक नई करवट राजनीति में ली और एक नया इतिहास रचा है 2014 के पश्चात। हम जानते हैं कि 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनकर के आई, मजबूत सरकार, और हमने देखा कि इस मजबूत सरकार को 2019 में फिर से भारत की जनता का आशीर्वाद मिला और देश के
चाहे कोई आपदा आई, चाहे समस्याएं आई, चाहे गरीबों के उत्थान के विषय थे, प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को फिर से 2024 में आशीर्वाद देते हुए इस ऐतिहासिक घड़ी को हम देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इस बात को भी हमने देखा, ये भी हम इसके अभी हम साक्षी हैं। मित्रों, एनडीए का गठन के पश्चात ये कोई भी गठबंधन पहली बार भारत के राजनीति में तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। और हम सब लोग खुशनसीब हैं कि हम उस ऐतिहासिक घड़ी के पल के चश्मदीद गवाह भी होंगे और साथ ही साथ उस पल को हम सब लोगों को देखने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि जो लोग देश हित के लिए काम करते हैं उन्हें चुनौतियां भी आती हैं और उन चुनौतियों को बखूबी लड़ करके देश प्रथम, देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे ले जाना है, इस कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग जिनके लिए खुद का स्वार्थ महत्वपूर्ण होता है और खुद के स्वार्थ के लिए स्वार्थपूर्ण गठबंधन करते हैं और स्वार्थपूर्ण तरीके से लोक लुभावने वायदे करके सरकार के नजदीक आना चाहते हैं, जहां ऐसे लोगों को देश की जनता सबक सिखाती है, वहीं इनका इकोसिस्टम जो देश के विकास के दृष्टि से जुड़ी हुई चीजें हैं उसको नकार देता है। बड़े बड़े राजनीतिक घटनाओं को दुनिया के सामने, देश के सामने उसको गलत तरीके से रखने का प्रयास करता है। हम बंगाल में 3 सीटों से बढ़कर के 77 सीट हो जाती हैं, उसकी चर्चा नहीं होती, कह देते हैं हम हार गए, भूल जाते हैं कि हमारे मत प्रतिशत कितने गुना बढ़े। और आज ही उड़ीसा में विशुद्ध पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, मोदी जी के नेतृत्व में। विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और उनके कुशल नेतृत्व के कारण वहां बन रही है। लेकिन कुछ लोग 30-40 सीटें जीत ले तो धूम मचाने लग जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि देश किस तरीके से मोदी जी के साथ खड़ा है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आज के दिन प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में हमने एक एक प्रदेश में अपना झंडा, एनडीए का झंडा गाड़ा। और आज मुझे खुशी होती है आपके साथ ये चर्चा करते हुए कि अरुणाचल प्रदेश में लगातार मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हमारी सरकार बन रही है, तीसरी बार सरकार बन रही है। उड़ीसा में हमने 80 सीटें जीती हैं, 40% हमारा मत प्रतिशत रहा है और उसी तरीके से लोकसभा में भी एक तरफा फैसला लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में दिया है। मैं आपके साथ इस बात की भी चर्चा करना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में हमारे अलायंस पार्टनर के साथ वहां भी एनडीए की सरकार बन रही है। इस तरीके से परिवर्तन हुआ है। मित्रों, केरल में भारतीय जनता पार्टी
ने अपना खाता खोला है। जहां हम कहीं दूर दूर तक नहीं दिखते थे, दूर दूर तक नहीं दिखते थे, उस केरल में कमल खिला है और वहां भी एनडीए की उपस्थिति हो गई है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे वोट शेयर बढ़े हैं, हमारे प्रदेशों में वोट का शेयर भी बढ़ा है। और इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं। 2014 में यह बहुत ही ऐतिहासिक घटना घटी थी कि एक गरीब मां का बेटा भारत का प्रधानमंत्री बने थे और वो भारत की गुर्बत और भारत के अंदर रहने वाले गरीब लोगों की दुख उसको उन्होंने आत्मसात किया था। वो जानते थे गरीबी क्या है, वो जानते थे कि गरीबों का नेतृत्व करने की क्या आवश्यकता है, वह जानते थे कि देश को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। और मुझे याद है कि 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी तो आपने उस समय कहा था, मेरी सरकार गांव को, गरीब को, वंचित को, पीड़ित को, शोषित को, दलित को, महिला को, युवा को, किसान को समर्पित रहेगी और उनके विकास के लिए हम काम करेंगे। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि आज आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज मिल रहा है और उनकी चिंता हुई है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। और आगे 30 में इस देश का कोई भी नागरिक जो 70 साल से ऊपर का होगा उसको भी आयुष्मान भारत का कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। इस बात को हमको ध्यान रखना। उसी तरीके से चाहे बहनों को गैस का चूल्हा पहुंचाना हो, गैस का सिलेंडर पहुंचाना हो, हर घर नल, हर घर जल, इसकी व्यवस्था करनी हो, हमारे भाइयों को, बहनों को बैंक से जोड़ना हो, ये सारे काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई और गरीब की चिंता की गई, गरीब की चिंता की गई। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में बागडोर संभाली थी तो भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी। भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ बैंकिंग व्यवस्था ये बिल्कुल लड़खड़ाई हुई थी, एक तरीके से ढह गई थी। और भारत देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ बैंकिंग व्यवस्था जब लड़खड़ाई तो दुनिया में भी हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत कम हुई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बैंकिंग व्यवस्था को मजबूती दी गई, अर्थव्यवस्था को मजबूती दी गई और बैंकिंग व्यवस्था के बारे में दुनिया ने भी सराहा कि आज भारत एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम के साथ खड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 में हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, 11वें नंबर की। आज हम मोदी जी के नेतृत्व में सुदृढ़ तरीके से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है और मोदी 30 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की होने जा रही है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गांवों को मजबूती मिली, गरीबों को ताकत मिली, दलितों को सम्मान मिला, युवाओं की आशाएं और आकांक्षाओं को पूरा किया, महिलाओं को सम्मान दिया और किसानों को मुख्य धारा में लाने का काम किया और वंचित पीड़ित लोगों को विश्वास के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। ये 10 साल का परिवर्तन हम सब लोगों को देखने को मिला है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि विपक्ष नकारात्मक सोच, नेगेटिव सोच के साथ काम करता रहा। कोई भी सकारात्मक 10 साल में कोई भी सकारात्मक योगदान विपक्ष का नहीं रहा है। और मैं तो यह भी कहूंगा कि अभी भी उनको गुमान है, अभिमान है कि देश में
एक ही परिवार राज करने लायक है, यानी रस्सी आपने बारंबार जलाई, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, इस तरीके का इनका व्यवहार रहा है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, चुनाव के दौरान इन्होंने झूठ फैलाया, इन्होंने फेक वीडियोस निकाले, जनता को बरगलाने का काम किया, गुमराह करने का काम किया, जनता को एक तरीके से झूठ बोल करके वास्तविकता से दूर रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने चुनाव में प्रजातांत्रिक मर्यादाओं को भी ताक पर रखा। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अपशब्द कहे, गालियां दी, एक बार नहीं अनेकों बार। ये विपक्ष का बौखलाहट बोलता है, ये विपक्ष की खिसियाहट बोलती है, ये विपक्ष का बारंबार हार देखने के कारण ये नतीजा हम सबको देखने को मिलता है। और ये अवसरवादी गठबंधन यह जिस तरीके से काम करता रहा है, लोगों ने इसको बारंबार खारिज किया है और 2024 में भी इनको खारिज किया, यह भी हम सबको मालूम है। ये तीसरी बार हार का सामना कर रहे हैं और इसके कारण ये बौखला गए। मेरी इनको सलाह है कि आप अब अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। समय आ गया है कि बारंबार आपको भारत की जनता क्यों आपको गिरा रही है, क्यों आपका साथ नहीं दे रही है, इसका आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है। और मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि गठबंधन एनडीए का मजबूती से मोदी जी के नेतृत्व में देश का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ेगा और देश को आगे ले जाएगा, इस बात का हम सबको विश्वास है। मैं यहां प्रधानमंत्री मोदी जी और आपके बीच में ज्यादा समय नहीं रहूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एनडीए का एक एक कार्यकर्ता, हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जो आप हर पल, हर घड़ी, हर दिन, हर महीने, हर वर्ष पूरी ताकत के साथ देश की सेवा में जुटे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके नेतृत्व में एनडीए का एक एक कार्यकर्ता भारत को सामर्थ्यवान बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा और आपके नेतृत्व में उसको हम सपना को पूरा करेंगे और हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं इसके पहले कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सबको ऐसे ऐतिहासिक मौके पर मार्गदर्शन मिले, मैं उससे पहले देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से, समग्र एनडीए परिवार की ओर से और देशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का माल्यार्पण करके, माला पहनाकर उनका स्वागत हम सब लोग करेंगे, ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। Modi being garlanded by the BJP big guns, JP Nadda, Rajnath Singh, Home Minister Amit Shah congratulating the Prime Minister, the BJP ministers rising in unison to celebrate this moment. Now Prime Minister Modi will be speaking for the first time after winning his third election as Prime Minister of the Union of India. Here he is, Prime Minister Narendra Modi. By itself the BJP more than the entire India alliance put together, but not the kind of victory he would have ideally wanted. Let's listen to what the Prime Minister will now soon be saying. आदरणीय प्रधानमंत्री, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की,
जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आपका ये स्नेह, आपका ये प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ, सबका विकास, इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। भाइयों और बहनों, मैं आज देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करूंगा। चुनाव आयोग ने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इतनी कुशलता के साथ संपन्न कराया। करीब 100 करोड़ मतदाता, 11 लाख पोलिंग स्टेशन, 1.5 करोड़ मतदान कर्मी, 55 लाख वोटिंग मशीनें, हर कर्मचारी ने इतनी प्रचंड गर्मी में अपने दायित्व को बखूबी निभाया। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने अपने कर्तव्य भाव का शानदार परिचय दिया। भारत के चुनाव प्रोसेस, चुनाव के इस पूरे सिस्टम और चुनाव प्रक्रिया की क्रेडिबिलिटी पर हर भारतीय को गर्व है। इस स्केल पर चुनाव का, इस एफिशिएंसी के साथ चुनाव का दुनिया में कहीं कोई उदाहरण नहीं है। और मैं देशवासियों को कहूंगा, मैं इन्फ्लुएंसर्स को कहूंगा, मैं ओपिनियन मेकर्स को कहूंगा कि भारत की लोकतंत्र में ये चुनावी प्रक्रिया की ताकत है, एफिशिएंसी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरव का विषय है। भारत की पहचान को 4 चांद लगाने वाली बात है। और ऐसे जो भी लोग हैं
जो दुनिया में अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उन सबसे मैं आग्रह करूंगा कि भारत के लोकतंत्र के इस सामर्थ्य को विश्व के सामने बड़े गर्व के साथ हमें प्रस्तुत करना चाहिए। इस बार भी भारत में जितने लोगों ने मतदान किया, वो अनेक बड़े लोकतांत्रिक देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने इस चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग कर अभूतपूर्व उत्साह दिखाया है और दुनिया भर में भारत को बदनाम करने वाली जो ताकतें हैं, उनको आईना दिखा दिया है। मैं देश के हर मतदाता को, जनता जनार्दन को विजय के इस पावन पर्व पर आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं देश भर के सभी दलों, सभी उम्मीदवारों का भी अभिनंदन करता हूं। सभी की सक्रिय भागीदारी के बिना लोकतंत्र की ये विराट सफलता संभव नहीं थी। भाजपा के, एनडीए के हर कार्यकर्ता साथी को भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथियों, इस चुनाव के, इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। मेरे पास डिटेल तो नहीं है, लेकिन शायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भी उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी ने केरला में भी सीट जीती है। हमारे केरल के कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं। कई पीढ़ियों से वो संघर्ष भी करते रहे, जन सामान्य की सेवा भी करते रहे और पीढ़ियों से, मैं सालों से नहीं कह रहा हूं, पीढ़ियों से जिस क्षण का इंतजार किया, वो आज सफलता को चूमने लगी है।
तेलंगाना में हमारी संख्या 2 गुना हो गई है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे कई राज्यों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। मैं इन सभी राज्यों और अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के मतदाताओं का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। मैं इन राज्यों की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार आपके विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। साथियों, 10 वर्ष पहले देश ने बदलाव के लिए जनादेश दिया था। तब देश ने हमें, क्योंकि वो समय था देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। 2013-14 का कालखंड देखिए, देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। फ्रेजाइल 5 शब्दों से मैं नवाजा जाता था। हर दिन अखबारों की हेडलाइन घोटालों से भरी रहती थी। देश की युवा पीढ़ी अपने भविष्य के संबंध में आशंकित हो गई थी। ऐसे समय देश ने हमें निराशा के गहरे सागर से आशा के मोती निकालने का जिम्मा सौंपा था। हम सभी ने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया, काम किया। 2019 में इसी प्रयास पर विश्वास व्यक्त करते हुए देश ने दोबारा प्रचंड जनादेश दिया। इसके बाद एनडीए का दूसरा कार्यकाल विकास और विरासत की गारंटी बन गया। 2024 में इसी गारंटी के साथ हम जन जन का आशीर्वाद लेने देश के कोने कोने में गए। आज तीसरी बार जो आशीर्वाद एनडीए को मिला है, मैं इसके सामने, जनता जनार्दन के सामने विनय भाव से नतमस्तक हूं। साथियों, आज का यह पल निजी तौर पर मेरे लिए भी भावुक करने वाला पल है। मेरी मां के जाने के बाद ये मेरा पहला चुनाव था, लेकिन सच मानिए, देश की कोटि कोटि माताओं, बहनों, बेटियों ने मां की कमी मुझे खलने नहीं दी। मैं पूरे देश में जहां जहां भी गया, माताओं, बहनों, बेटियों ने अभूतपूर्व स्नेह और आशीर्वाद दिया।
और यह आंकड़ों में नहीं दिख सकता है। देश के इतिहास में महिलाओं द्वारा वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इस प्यार, इस अपनेपन को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये मेरे भावों में है, ये मेरे मन मस्तिष्क के कोने कोने में रचा बसा है। देश की कोटि कोटि माताओं बहनों ने मुझे नई प्रेरणा दी है। साथियों, पिछले 10 साल में देश ने बहुत बड़े फैसले लिए हैं। राष्ट्र प्रथम की भावना हमें असामान्य लक्ष्य हासिल करने का हौसला देती है। ये हम में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति उत्पन्न करती है। हमने दुनिया की सबसे बड़ी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। आजादी के 70 साल बाद 12 करोड़ लोगों को नल से जल मिला। आजादी के 70 साल बाद 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर मिले। देश के 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन की सुविधा मिली। करोड़ों गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। राष्ट्र प्रथम की इसी भावना की वजह से जम्मू कश्मीर से 370 हटी। जीएसटी और आईबीसी जैसे रिफॉर्म हुए, बैंकिंग रिफॉर्म हुए। हमने राष्ट्रहित को हमेशा सबसे आगे रखा। आप याद करिए, कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, हमने वही फैसला लिया जो देश हित में था, जनहित में था। हमने हर दबाव से अलग हटकर कदम उठाया और इसी का नतीजा है आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी इकोनॉमी है। राष्ट्र प्रथम की यही भावना भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। साथियों, हमारे सामने एक महान संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प। 10 साल के बाद लगातार तीसरी बार जनता जनार्दन का प्यार, उनका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है, हमारे संकल्प को नई मजबूती देता है, नई ऊर्जा देता है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। मैं देश के कोने कोने में उपस्थित बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहूंगा, देशवासियों को कहूंगा, आपकी मेहनत, इतनी गर्मी में आपका बहाया पसीना, ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है।
और मैं देशवासियों का दोबारा दोहराना चाहता हूं, अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता हमेशा ही समाज के हर क्षेत्र और हर वर्ग के विकास की रही है। बीते 10 वर्षों में हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और इसमें एक बड़ी संख्या एसटी, एसटी, ओबीसी की है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गरीबी देश के अतीत का हिस्सा न हो जाए। वुमेन लेड डेवलपमेंट हमारी सरकार के गवर्नेंस मॉडल के केंद्र में रहा है। स्पोर्ट्स से स्पेस और एंटरप्रेन्योरशिप तक हम हर क्षेत्र में माताओं, बहनों, बेटियों को नए अवसर देने के लिए काम करेंगे। बीते 10 वर्षों में आपने देखा है, हमने मेडिकल कॉलेज की संख्या 2 गुनी की है, एम्स की संख्या 3 गुनी की है, स्वरोजगार और स्टार्टअप में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। हमने भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चर बनाया है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और ऐसे नए सेक्टर्स में और तेजी से काम किया जाएगा। हमने देश के डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ाने का प्रयास किया है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक देश का डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर नहीं बन जाता। हम अपने युवाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार हर क्षेत्र में सशक्त करेंगे। किसानों के लिए बीज से बाजार तक आधुनिक नीतियों को बनाने का काम और प्राथमिकता पर होगा। दलहन से लेकर खाद्य तेल तक हम हमारे किसानों को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करते रहेंगे। साथियों, आने वाला समय ग्रीन एरा है, हरित युग का है। आज भी हमारी सरकार की नीतियां प्रगति, प्रकृति और संस्कृति के समागम की है। हम ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन पर निवेश बढ़ाएंगे। ग्रीन एनर्जी हो या फिर ग्रीन मोबिलिटी, हम भारत को सबसे आगे ले जाएंगे। भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए एनडीए सरकार पूरी शक्ति से काम करेगी। भाई और बहनों,
आज का भारत वैश्विक समाधान का हिस्सा भी बन रहा है। हमने कोरोना के दौरान देखा है कि कैसे भारत की वैक्सीन कैपेसिटी ने दुनिया को संकट से बचाने में मदद की। हमारे चंद्रयान ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करके स्पेस एक्सप्लोरेशन के नए रास्ते खोले हैं। क्लाइमेट चेंज से लेकर फूड सिक्योरिटी तक जो भी विषय दुनिया के सामने है, भारत उनके लिए काम करना अपनी जिम्मेदारी समझता है। भारत ग्लोबल सप्लाई चेन को स्टेबिलिटी और डायवर्सिटी देना भी अपना दायित्व समझता है। इसलिए भारत आज विश्व बंधु के रूप में सबको गले लगा रहा है। मुझे विश्वास है मजबूत भारत मजबूत दुनिया का एक मजबूत स्तंभ सिद्ध होगा। साथियों, 21वीं सदी के भारत को आगे बढ़ना है तो उसे करप्शन पर भी लगातार तेज प्रहार करना ही होगा। डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी ने करप्शन के अनेक रास्ते बंद किए हैं, लेकिन ये भी सच है कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई दिनों दिन कठिन हो रही है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए जब करप्शन का महिमा मंडन शुरू हो जाए और इसमें निर्लज्जता की सारी हदें पार हो जाए, तब करप्शन को बहुत ताकत मिल जाती है। इसलिए तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। भाइयों और बहनों, भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए हमेशा से दल से बड़ा देश रहा है। सेवा भाव से बड़ी राजनीति कोई नहीं हो सकती। इसलिए हमें सेवा भाव को सर्वोपरि रखने की परंपरा को निरंतर मजबूत करना है। भाजपा का कार्यकर्ता जन आकांक्षाओं, जन भावनाओं और जन अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और ये हम कभी भूल नहीं सकते हैं। जरूरी है कि समाज के हर वर्ग से और हर व्यक्ति से हम निरंतर संवाद करते रहे। साथियों, कुछ ही दिनों में देश छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ मनाएगा। उनका जीवन अपने आप में इस बात की प्रेरणा है कि ध्येय पथ पर अड़ी कैसे रहा जाता है। अपने ध्येय पथ में भी हमारी मेहनत में कोई कमी ना रहे। हम पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से देश की सेवा करते रहे। हमारे जीवन की बहुत बड़ी कसौटी होनी चाहिए। हम सभी मिलकर देश के लिए काम करें, हम देश हित को सर्वोपरि रखें, तभी हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। हमारा संविधान हमारी गाइडिंग लाइट है। इसी साल हमारे संविधान के
75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। केंद्र की एनडीए सरकार सभी राज्यों के साथ, चाहे वो किसी भी दल की क्यों ना हो, मिलकर काम करेगी। विकसित भारत के लक्ष्य के लिए हम खूब मेहनत करेंगे, जमकर मेहनत करेंगे। हमारे पास रुकने का, थमने का समय नहीं है। ये राष्ट्र नीति के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का समय है। विकसित भारत के हमें निरंतर बड़े फैसले लेने हैं। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए उत्तम फैसले भी लेने हैं। 6 दशक के बाद देश के मतदाताओं ने एक नया इतिहास रचा है। 6 दशक बाद किसी गठबंधन को, एनडीए को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। जनता जनार्दन के साथ विश्वास का ये अटूट रिश्ता, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी शक्ति है। आपका आशीर्वाद नए उत्साह, नए उमंग के साथ काम करने की हमारी ऊर्जा है। मैं हमारे अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी और संगठन की केंद्र की टीम, संगठन की राज्यों की टीम, जिले की टीम, मंडल की टीम, बूथ लेवल की कमेटी हो या पन्ना प्रमुख, नड्डा जी के नेतृत्व में अनेक चुनौतियों के बीच जिस हिम्मत के साथ, जिस समर्पण भाव से राष्ट्र प्रथम के मंत्र को जीते हुए इस चुनावी जंग में एनडीए को विजय दिलाई है, वे सबके सब अनेक अनेक अभिनंदन के पात्र हैं। मैं आज देशवासियों ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ी कृपा की है, एनडीए पर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं 140 करोड़ देशवासियों का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। मैं हमारे एनडीए के सभी साथियों का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं इस देश के महान लोकतंत्र को, महान संविधान को फिर श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।